In this video, I am going to discuss how to study during last 10 days before JEE Main. Every student, of course, wants a good percentile. And all the students, I assume, studied a lot during the past 2 years. Now, how should they study in the final 10 days to maximize their percentile? This is I am going to discuss. First of all, you have to evaluate your preparation in all the 3 subjects, means physics, chemistry and maths. Now, how to evaluate? You must have appeared in the number of tests in physics, chemistry and maths. On the basis of that, you can very well check what is going to be your weakest subject. If we improve the weakest subject, definitely we are going to do well in all the 3 subjects and hence the percentile maximizes. The first thing is identification of the weakest subject, and the remedial action is to be taken in that subject. Now, how to identify? See, you said you are weak in physics, but physics is very wide from 11 to 12. Weak in mechanics, or weak in thermodynamics, or weak in electrostatics. That has to be pinpointed. Similarly, in chemistry, whether you are weak in organic chemistry, inorganic chemistry, or physical chemistry, and even in that, in which of these chapters. Similarly, in math, whether you are weak in calculus, or weak in algebra, or weak in geometry, and even in that, in which of these chapters you are not up to the mark. Alright, after identification of this thing, now I will pass on to the routine for the last 10 days in order to maximize the output. See, I will divide the time in 2 parts. Part 1, in which you have to go on in the practice mode. The part 1 means from morning till 5 p.m. During that time, you have to be in practice mode. And in the evenings, from 5 p.m. to the sleeping time, you have to take the remedial step in the weakest subject, which you have already identified. So first of all, I will talk about part 1, means you have to be in the practice mode during the morning session. So after getting up in the morning, of course, you have to get up as early as 7 o'clock. Get ready. After getting ready, what you have to do? You have to go for the warm-up before the mock test to be taken after that. What this warm-up means? In warm-up, you have not to revise the formulas. You have just to do, say, 9 questions. 3 in maths, 3 in physics, 3 in chemistry. Now, how these questions to be chosen? These questions can be chosen from, say, 25 years, past year papers, or 24, or 23, or 22, or so on. Now, these questions, you have to note, should not be very difficult. If they are very difficult, instead of the warm-up, they go on the negative side. There is a confusion before the exam itself.
And these questions should not be very easy. Otherwise, warm-up हुआ ही नहीं. So, the level of the question should be moderate. So, you have to choose moderate level questions from 25, 24, 23, 22 papers. One more thing, please note, you must have solutions of these questions so that there is no confusion before the actual test to be taken. So, after the warm-up, you are now going to give a mock test. Now, what type of materials you can use for the mock test? You can use only past year actual online papers. Alright? The past year actual online papers of 25, 24, 23, 22. So you can select any set from 2025. You appear in that paper. So on one day, if you use 2025 paper, next day you can go with 2024, then 2023, then 2022, then revert back to 25, then 24, then 23, then 22, and so on. Now, you have to appear in the paper, and order of these subjects to be decided by you. Say, you start with, say, physics, then maths, and finally chemistry, or chemistry, then maths, and finally physics. Why I kept maths in between? Because in the JEE Main papers, maths is usually lengthy and difficult. So you should not start your paper with maths. And why I am saying you have not to take maths as a third subject, because very good number of students gets tired in the third hour, and hence lot of mistakes, and math score goes on the negative side. That's why if you are keeping maths as at the second place, you are almost going to maximize your output. Alright? After appearing in the mock test, what do you have to do? You have to check your solutions. By appearing in the test and checking solutions, you are gaining, but gaining only 25% or up to 25%. Remaining benefit of 75% will come from the proper follow-up of this mock test. How this proper follow-up is to be done? What do you have to do? Say, in maths, you divide your questions in 4 categories. All 25 questions in 4 categories. Number 1, first category. Those questions where you started and stopped in between. These are good number of questions. Then, those questions where you committed error. Thirdly, those questions which you are unable to start. And fourthly, those questions which you have correctly attempted. So all 25 questions fall into the 4 categories. Stopped in between, error, unable to start, and finally, fully correct questions. In each case, you have to take the remedial step. The questions which stopped in between. So you have to note down, आप कहाँ पे रुके? Where you stopped actually? You stopped, suppose at that part in which we have to use some base changing formula of logarithm, which you forgot. So pinpoint that. Unable to use base changing formula of logarithms. Unable to use base changing formula of logarithms.
So what is the remedial step? What you have to do? You have to do 5 questions on base changing formula of Lorentz. क्यों? अगर फिर क्वेश्चन आएगा फिर आप बेस चेंजिंग फॉर्मूला पे रुकोगे, तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला को परफेक्ट करना है, तो दैट इज द रेमेडियल स्टेप. यू हैव टू डू 5 क्वेश्चंस ऑन बेस चेंजिंग फॉर्मूला. सपोज यू स्टॉप्ड, you are unable to solve some trigonometrical equation. So, where you stop, you are unable to solve the trigonometrical equations. So, in the follow-up, what you have to do? 5 questions on how to solve trigonometrical equations to be done. Follow-up में 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे उस एक क्वेश्चन के लिए. क्यों? अदरवाइज दोबारा से ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आएगी, दोबारा आपकी सॉल्व नहीं होगी. राइट? तो जहां पे आप रुके उसको मेन चीज मान के आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, तभी आपकी वो दिक्कत हमेशा के लिए खत्म होगी और नेक्स्ट टाइम आपको पेपर में वो दिक्कत नहीं आएगी. दिस इज फॉर दोज क्वेश्चंस वेयर यू हैव स्टॉप्ड इन बिटवीन, बट समटाइम्स यू स्टॉप बिकॉज ऑफ सम एरर. यूजुअली इन द एंड क्वेश्चन कर लेते हैं, एरर के कारण आंसर चारों में से नहीं आता. इसका मतलब एरर हुई, तो आपको अपनी एरर आइडेंटिफाई करनी है. आइडेंटिफाई एरर करने का मतलब भाई लॉजिकल एरर हो सकती है. लॉजिकल एरर तो जैसे मैंने बताया था बेस चेंजिंग फॉर्मूला की एरर या ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन की एरर. अब मैं बात करूंगा एरर्स और भी होती हैं. कॉपी डाउन एरर हो जाती है, कॉपी डाउन के साथ साथ न्यूमेरिकल एरर क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाता है, तो ऐसी एरर भी होती है. अब ऐसी एरर को रेक्टिफाई कैसे करें? भाई जो भी आप एरर करते हो, से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गलत होता है, तो जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का स्टेप आए तो आपको करना क्या है? कुल मिला के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के स्टेप करते हुए आपको स्लाइटली स्लो डाउन होना है, विद मोर कंसंट्रेशन काम करना है कि आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गलत ना हो. ये तो हम डे टू डे लाइफ में भी लगाते हैं. सपोज जैसे मैं कार ड्राइव करता हूं, मेरी स्पीड थ्रू आउट दी जर्नी सेम थोड़ी होती है. भाई जब स्ट्रेट रोड है 60 किलोमीटर पर आवर, और जब टर्निंग आ गई इट रिड्यूसेस टू 30-35 किलोमीटर पर आवर. रीजन दैट इज माई एरर प्रोन एरिया, ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम वेरियस डायरेक्शंस. ऐसे ही आपने आइडेंटिफाई किया अपना एरर प्रोन एरिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब भी आएगी आपको स्लाइटली स्लो डाउन होके विद मोर कंसंट्रेशन काम करना है. तो कुल मिलाकर करना क्या है? आपको आइडेंटिफाई करनी है अपनी एरर्स. अब जो भी आप एरर करते हो उसके पैरेलल जब भी स्टेप आएगा आपको स्लो डाउन होके विद मोर कंसंट्रेशन काम करना है, सो दैट वो एरर हो ही नहीं. ठीक है? तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? ऐसे क्वेश्चंस विच स्टॉप्ड इन बिटवीन, फिर ऐसे जिनमें एरर हो गई, तो एरर को कैसे रेमेडियल स्टेप क्या लेना है एरर के लिए, वो ही मैंने बता दिया. नाउ आई एम कमिंग टू दोज क्वेश्चंस विच यू आर अनेबल टू स्टार्ट. अब क्वेश्चन अनेबल टू स्टार्ट है. अनेबल टू स्टार्ट में देखो पहले किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये तो पता लग जाएगा. से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. अब इतना आइडेंटिफाई करने से तो बात नहीं बनी, आगे चलते हैं. प्रोबेबिलिटी में किस चीज का क्वेश्चन है? प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट्स है, लास्ट टोटल प्रोबेबिलिटी है. बेस थ्योरम में किसका क्वेश्चन है? अब से लास्ट टोटल प्रोबेबिलिटी का है, तो आपको लास्ट टोटल प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चंस करने हैं इन ऑर्डर टू इंप्रूव अपॉन दैट, कि भाई रेमेडियल स्टेप हो जाए ताकि वो चीज दोबारा से गड़बड़ ना करे. नाउ आई एम कमिंग टू दोस क्वेश्चंस व्हिच आर फुली करेक्ट. अब आप कहोगे इसका रेमेडियल स्टेप क्या लेंगे? भाई ये तो पहले ही फुली करेक्ट है. सपोज इस क्वेश्चन को करने में आपके 9 मिनट्स लगे. अगर आपने 9 मिनट्स स्पेंड किए, ये भी तो हो सकता है ये 5 मिनट्स में क्वेश्चन हो जाता.
तो आपको ये देखना है कि आपका जो मेथड है वो ज्यादा टाइम कंज्यूम क्यों कर रहा है। तो क्या हमारे पास कोई बेटर मेथड है टू सॉल्व दैट क्वेश्चन? यूजुअली क्या होता है, क्वेश्चन मिला और हमने करना स्टार्ट कर दिया। अब जब हम करना स्टार्ट करते फिर हमको ध्यान आया ये ऐसे भी कर सकते, तो हमने उसको चेंज कर दिया। एक्चुअली गिव से 20 seconds बिफोर स्टार्टिंग, सोच लो क्या करना है, उसी डायरेक्शन में करोगे तो आपका करते हुए टाइम कम लगेगा और आप बेटर मेथड सिलेक्ट करोगे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट में बहुत ज्यादा होता है। क्यों? देयर आर ऑलवेज 3 to 4 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन। तो आपको शॉर्टेस्ट मेथड से ही क्वेश्चन करना है इन ऑर्डर टू सेव टाइम। तो मैंने आपको चारों टाइप के क्वेश्चन के रेमेडियल स्टेप्स बताए। भाई क्वेश्चंस विच स्टॉप्ड इन बिटवीन, उसमें क्या करना है, क्वेश्चन जिनमें एरर हुई उसमें क्या फॉलो अप करना, क्वेश्चन जिनमें यू आर अनेबल टू स्टार्ट उसमें क्या करना है, एंड फाइनली क्वेश्चन विच आर फुली करेक्ट उसमें क्या करना है। तो ये सारी चीजें आपको इसी ढंग से फॉलो अप करना पड़ेगा। आप कहोगे इसमें तो टाइम लगेगा, बिल्कुल 3 hour पेपर का फॉलो अप 6 to 7 hours में होगा इनिशियली, और इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। बट धीरे धीरे एज द टाइम पासेस 2-3 पेपर जैसे ही करोगे आप, ये टाइम रिड्यूस होता जाएगा एंड फॉलो अप टाइम कम होता जाएगा। बट फॉलो अप टाइम अगर से 10-20 मिनट्स है, हाफ एन आवर है, तो एक्चुअली आप फॉलो अप नहीं कर रहे, आप जस्ट आंसर्स को पढ़ रहे हो कि भाई करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी द केस। फॉलो अप अगर प्रॉपर वे में होगा तो इन दिस 10 days आपका परसेंटाइल बढ़ता जाएगा। सिर्फ फर्स्ट डे पे अगर 90 आ रहा है, एक फॉलो अप के बाद वो 91 हो गया, दूसरे फॉलो अप के बाद वो 93 हो गया, तीसरे फॉलो अप के बाद वो 95 हो गया। तो फॉलो अप का मेथड शुड बी वेरी प्रॉपर। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये 25 क्वेश्चन मैथ्स के दिए थे, ऐसे ही 25 फिजिक्स के, सेम इसमें भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। स्टॉप इन बिटवीन, एरर, फिर क्या था, अनेबल टू स्टार्ट, एंड फाइनली फुली करेक्ट क्वेश्चन। ऐसे ही केमिस्ट्री में तो 75 क्वेश्चंस का फॉलो अप आपको इस वे में करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू improve your percentile with each passing day before the exam। चलिए, ये तो हुआ पार्ट 1। पार्ट 1 का जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग टिल 5 PM। अब तुम कहोगे टेस्ट के बाद फॉलो पूरा ही नहीं हुआ तो अगले दिन होगा, बट 5 PM के बाद आपको एक और चीज भी करनी है। इनिशियली मैंने बताया था अपना वीकेस्ट सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है। 5 PM के बाद हम क्या करेंगे, अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट को इंप्रूव करेंगे। बट वीकेस्ट सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट इन नेक्स्ट 5 days ओनली, 5 days में हो जानी चाहिए। हम वीकेस्ट सब्जेक्ट से आपका है फिजिक्स। अब फिजिक्स का कोई चैप्टर आपने क्या करना है, इंप्रूव करना है, बेटर करना है। क्या करेंगे भाई, आपको एक तो उस चैप्टर की अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा ढंग से तो इनिशियल रीडिंग करनी पड़ेगी फ्रॉम ए बुक लाइक से एससी वर्मा की बुक से वो चैप्टर किया, बट उससे आपका चैप्टर तैयार नहीं हुआ। फिर आप करोगे टॉपिक वाइज PYQs ऑफ दैट चैप्टर, वो 25, 24, 23, 22 ईयर्स के उसी चैप्टर के क्वेश्चंस करोगे। जब तुम 100 क्वेश्चन ऑफ द सेम चैप्टर करते हो, सारा टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो गया, तो आपका वो टॉपिक इंप्रूव हो गया। ऐसे ही कोई और चैप्टर भी है फिर इसका, वो भी ऐसे ही करो। अब से आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में भाई जो भी चैप्टर है वो चैप्टर कहां से पढ़ोगे, ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी। रीड किया, चेक किया,
उसके बाद करोगे टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज ऑफ द चैप्टर। अब तुम कहोगे हम तो नोट्स यूज कर ले। अब नोट्स तो इतने बड़े होते हैं, इतने सारे नोट्स आप 5 दिन में सारे चैप्टर्स रिवाइज नहीं कर पाओगे, रेमेडियल एक्शन नहीं दे पाओगे। तो बस ओनली एनसीईआरटी एंड देन एक्चुअल पीवाईक्यूज विच केम इन द पेपर। तो पीवाईक्यूज भाई टॉपिक के अगर 100-200 पीवाईक्यूज करोगे तो नेचुरल है वो टॉपिक इंप्रूव हो गया। अब मैथ्स में भाई कोई चैप्टर में आपको इंप्रूव करना है तो आप वो चैप्टर इंप्रूव कर सकते हो। भाई एग्जाम्पलर प्रॉब्लम एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी एनसीईआरटी की वर्कबुक है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से वो चैप्टर किया और उसके बाद वही पास्ट ईयर पेपर्स किए टॉपिक वाइज। तो एक्चुअली वहां से बुक से इनिशियलाइजेशन मिलता है और पीवाइज की उससे आपकी प्रैक्टिस होती है टॉपिक वाइज से, जो रेमेडियल एक्शन है वो आपका पूरा हो जाता है। तो इस वे में इवनिंग टाइम में फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स टिल स्लीपिंग टाइम आप इंप्रूव करोगे अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट को। जैसे ही वीकेस्ट सब्जेक्ट बराबर के लेवल पे आएगा आपका परसेंटाइल ड्रास्टिकली बढ़ेगा। क्यों? आपके तीनों परसेंटाइल अच्छे आ रहे हैं, मैथ्स का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी। तो नेचुरल है कि आपका नेट परसेंटाइल विल बी राइट, विल बी रियली गुड। तो इस वे में आपको पढ़ना चाहिए। तो फॉर द फर्स्ट 5 days मॉर्निंग टाइम प्रैक्टिस मोड, इवनिंग टाइम आपने क्या किया, रेमेडियल स्टेप फॉर द वीकेस्ट सब्जेक्ट, एंड इन द लास्ट 5 days बिफोर द पेपर आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको प्रैक्टिस मोड में जाना है। भाई मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट का फॉलो अप किया। एक्चुअली फॉलो अप इज ए मेथड ऑफ रिवीजन, दिस इज ए पिन पॉइंटेड रिवीजन। आप वही रिवाइज कर रहे हैं जो आपको नहीं आता। एक्चुअली हम क्या करते हैं, बार बार रीड करते हैं बुक को। से केमिस्ट्री 5 बार पढ़ ली, छठी बार फिर लगता है भूल रही है, वो तो भूलेगी, इट्स ए नेचुरल थिंग। तो आप अगर पिन पॉइंटेड रिवीजन करोगे, जैसे मैंने बताया कि भाई सुबह उठे, वार्म अप किया, मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट का फॉलो अप किया। फॉलो अप का मेथड 4 कैटेगरीज में क्वेश्चन को बांटो और उसके हिसाब से फिर जैसे अनेबल टू स्टार्ट या स्टॉप इन बिटवीन वाले क्वेश्चन है, उसके 5 क्वेश्चन भी करने हैं आपको। तो आप एक्चुअली पिन पॉइंटेड रिवीजन कर रहे हो, जिससे आपका परसेंटाइल बढ़ेगा। तो वीकेस्ट सब्जेक्ट में भी परसेंटाइल बढ़ेगा और बाकी जो सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हैं उनमें भी परसेंटाइल बढ़ेगा, एंड हेंस यू आर एबल टू मैक्सिमाइज द परसेंटाइल इन द रिमेनिंग 10 days बिफोर योर JEE मेंस, राइट? तो ट्राई टू अप्लाई दिस। ये मेरे एक्सपीरियंस से ही आया है। आई एम ऑलमोस्ट 70 years old नाउ, राइट? तो बच्चे बड़े आराम से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE मेंस।